آپ کے سب کی تالیاں میں خدا کے خادم کو سامنے دعوت دیں گے. یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. آئیں کھڑے کھڑے انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے. متی کی انجیل 16 باب اس کی 24 اور 25 آیت پڑھ دیں گے, اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے گا. متی کی انجیل 16 باب 24 اور 25 آیت کو پڑھیں گے. 21 نمبر پیج ہے. اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا, اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا. آمین. آمین. خدا کا شکر ہو. تشریف رکھیں. ہلیلویا. میں چاہتا ہوں سب سے پہلے کوبیر کے لیے زوردار کلیپنگ کریں. آج کافی دنوں کے بعد فارم میں نظر آئی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہی ہے نا, سنڈے کو کوئی فارم میں نہیں تھے. پھر اس کے بعد اتنے بیمار, پھر بدھ کو بھی یہی حال تھا. لیکن خدا کا شکر ہے کہ آج کوبیر نے اچھا کام کیا, زبردست ورشپ کی. لکھا جہاں ساز اور آواز مل جاتے ہیں وہاں میرا بر, اور واقعی آج خدا کا بر چھا چکا ہے. روح القدس کثرت سے کام کر رہا ہے یہاں پہ, اور یہ خدا کی پاک مرضی ہے. ایسے ہی نہیں مسا اٹھاتا. لیکن میں ایک چیز بتاؤں, بہت سارے لوگ اس بات سے واقف بھی نہیں ہیں. وہ روح القدس کو نہیں جانتے کہ روح القدس کام کیسے کرتا ہے. اس لیے جو لوگ اس سے واقف ہیں ان کو ہی پتا چلتا کہ اب روح القدس کیا کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ خدا عجیب طریقے سے کام کر رہا ہے. خدا کا گہرا مسا یہاں پہ چھایا ہوا ہے, اور یہ عام بات نہیں ہے. جب نہیں ہوتا اس دن میرا موڈ بھی خراب ہوتا ہے. پتہ ہے ہوتا ہے نا, جس دن مسا نہیں ہوتا میرا موڈ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ مسا نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں, جیسے اکثر میں بات کرتا ہوں, ابھی زہرا نے تھوڑی کلاس کی کویر کی, اچھا ہے, ہونی چاہیے. کویر میں اکثر بات کرتا ہوں, کویر وہ چیز ہے جب جنگ کے لیے فوج نکلتی ہے تو سب سے آگے پتہ کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا, سب سے آگے پیدل فوج ہوتی ہے جو پیدل چلتے ہیں, اور ان کے پیچھے توپ کانا ہوتا ہے. توپے ٹینک پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. کویر جو ہے, جو گانے والے ہیں, حقیقت میں گانے والے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں کہیں بیٹھا تھا تو وہاں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ گانے والے پینے کے بغیر نہیں گا سکتے. چرس پی لیں, کچھ نہ کچھ پی کے پھر گاتے ہیں. تو میں خدا کا کلام سنا رہا تھا کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ خدا روح ہے, اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پی کے ٹونوں کے تو پھر پرستش کرنی تو پھر مسا چانا. آج ہمیں یہ بھی پتا نہیں ہے. ہم ان سنگروں کو دعوتیں دیتے اپنے چرچز میں, اپنے سٹیج پہ, جو جن کے پاس روح القدس دور دور
गुजरता भी उनके पास से, लेकिन हम पसंद करते हैं ऐसे सिंगरों को सुनना, ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, बड़े बड़े नाम, लेकिन ये नहीं पता कि रूहुल कुदस कहां पे है। बता रहा था कि कुवैर का काम क्या है। जब फौज चाबी होती है तो जो पीछे तोप खाने वाले होते हैं, टैंक वाले होते हैं, वो गोले फेंकते हैं आगे, ताकि जो पैदल चलने वाले हैं वो आगे वहां पे जाके अटैक कर सके जहां पे उन्होंने अटैक करना है। अब कुवैर तोप खाना है, अगर ये गोले ठीक नहीं फेंकेगी तो जो आगे चलने वाले वो जाके अटैक कर लेंगे। पास्टर पैदल चलने वाले होते हैं जिन्होंने अटैक करना होता है, और जब तक कुवैर उनको उस जगह पे नहीं पहुंचाती उस वक्त तक कोई अटैक ठीक तरीके से नहीं होता। इसलिए कुवैर मैं समझता हूं बेइज्जती होती चंगा होता था नहीं, क्योंकि यहां पे बार बार एक बात कही जाती है कि जब इबादत शुरू हो जाती दोनों कैमरे चल जाते हैं और फिर उस वक्त कुवैर आना शुरू होती है। नहीं, मेरी जिंदगी का असूल रहा, 15 साल मैंने चर्च ऑफ पाकिस्तान वालों के साथ खिदमत की और मेरा रिकॉर्ड था कि हमने कभी भी 1 मिनट भी लेट नहीं गए। 15 मिनट पहले हम चर्च में जाके बैठे होते थे, जाके सेटिंग करनी, सारा कुछ करना, क्योंकि हम खुदा से प्यार करते। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, मैं आज एक फैमिली यहाँ पे आई है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। वो आज बेचारे 5 बजे ही आ गए, 5 साढ़े 5 बजे वो यहाँ पे पहुंचे। तो मैंने कहा अभी आज बुध है तो मैं मिलता भी किसी को नहीं, लेकिन मैं दुआ कर दूंगा, लेकिन आपको इबादत अटेंड करनी पड़ेगी। वो बैठे हैं यहाँ पे, इबादत में बैठे हैं, लेकिन खुदा इनकी जिंदगी में मौजज़ा करने वाला है, ये मौजज़ा हासिल करके जाएंगे। क्योंकि जब हम वफादारी दिखाते हैं तो खुदा हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करता है। खुदा वफादारी देखता है, और अगर हम वफादारी नहीं दिखाते तो खुदा भी गंदा चाल है लगा फिर। इसलिए कुवैर के लिए खास बार बार ऐलान किया जाता है कि वफादारी दिखाएं। मुझे किसी ने सवाल किया, भाई साहब आपके चर्च में एक भी लड़का कुवैर में नहीं रखा। मैं क्या, मैं रखना भी नहीं चाहता। कुवैर के लड़के बाहर, टीम के लड़के बाहर होते हैं, लड़कों को हमने बाहर की जिम्मेदारी दे रखी है। कुवैर में हमने लड़कियां इसलिए रखी है कि कभी भी इब्लीस कोई काम ना कर सके, क्योंकि कुवैर में से ही चर्चिज में काम शुरू होते हैं और फिर बखेरे हो जाते हैं। इब्लीस सबसे पहले कुवैर को पकड़ता है, बेटियों को, बेटों को, और उसी से स्कैंडल शुरू होते हैं। इसलिए मैं इस हक में नहीं हूं कि कुवैर में कोई भी लड़का हो। गाने वाले हैं हमारे पास, और मेरा खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमारी टीम जो बड़ी वफादार, बेटे जो हैं वो भी लड़कियों जैसे ही, कोई इशू नहीं है। आज तक हमारे चर्च का कभी किसी ने सुना कि हमारे चर्च में कभी भी ऐसा वाकया आया हो? कभी नहीं होगा, क्योंकि हम खुद बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए दुआ भी करते हैं, और हमारी पूरी नजर जो है इन पे हमेशा रहती है। हम ध्यान रखते हैं इनका, क्योंकि ये हमारे बेटे और बेटियां हैं। हम नहीं समझते, जब ये हमारी जिम्मेदारी है तो फिर हमने इनको डांटना भी है। यहां तक अगर फैंटी लगानी पड़े तो हम फैंटी भी लगाएंगे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि हमने आपको सिखाना है। चाहे डंडे से सीख लें या मोहब्बत से सीख लें, दोनों काम है और दोनों से ही करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा जिसे प्यार करता उसे तब्दील भी करता है, उससे डांटता भी है, उसे छांटता भी है। और जो पास्टर प्यार करते अपने लोगों से, वो डांटते भी हैं, छांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, तंबीह भी करते हैं। और जेड़े कहते खाली चंदा आउंदे हो बेखी जाएगी, जो मर्जी करो सानूगी, लेकिन मैं उन पास्टरों में से पास्टर नहीं हूं, आप जानते हैं मुझे। आए खुदा के ज़िंदा कलाम में से थोड़ी देर के लिए सीखते हैं। अभी हमने खुदा के ज़िंदा कलाम में से मत्ती रसूल की इंजील को खोला था। जब 24 आयत को पढ़ते तो लिखा है, उस वक्त यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे खोले। अब तो यीशु मसीह साफ साफ बयान करता है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता तो उसके अंदर क्वालिटी क्या होना चाहिए। क्वालिटी मांगता है, वैसे नहीं। हर बंदा नहीं उसके पीछे चल सकता, हर बंदा उसके पीछे नहीं चल सकता। अगर हम कहें कि जी हम बड़े वफादार हैं, मैं नहीं समझता
मैं अपनी जिंदगी पर भी कभी कभी गौर करता हूं, मैं खुदा कहता हूं, खुदा केड़ी गलती मेरे तो होगी, कहां पे मैं गलत हूं, तो मुझे बताया खुदा, मैं वो गलती खत्म करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे आगाह कर, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। खुदा यीशु मसीह ने साफ साफ अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हें किन किन मुश्किलात का सामना करने की जरूरत है। अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपनी खुदी का इनकार। खुदी का मतलब क्या है? अपने आप को मार देना। कहते ना वो बड़ा ही खुद गर्ज है, वो बड़ा ही खुद गर्ज है। जो लोग खुद गर्ज होते खुदा को पसंद नहीं करता। यहां पे हम देखते हैं लिखा है, पहली बार लिखा है खुदी का इनकार करे, अपने आप को मसीह के कंट्रोल में दे दे। यह है खुदी का इनकार करना। खुदा मैं अपने आप को छोड़ दूं, मैं अपनी जिंदगी खत्म करता हूं, खुदा आज के बाद मैं दुनियादारी को छोड़ दूंगा, खुदा आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तेरी ताबेदारी में अपनी जिंदगी को बसर करूंगा। यह है अपनी खुदी का इनकार, अपने आप को मार देना, पस्त कर देना। खुदी का इनकार, खुदा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तू ही सारा कुछ है, मैं अपने आप को तेरे क्या कर देता हूं, ताबे कर देता हूं। यह है खुदी का इनकार। और जो लोग ये नहीं कर सकते वो दावा नहीं कर सकते कि आप खुदा यीशु मसीह के बड़े सच्चे वफादार हैं। मैं बड़े लोगों को जानता हूं। फिर उसके बाद है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे। और फिर दूसरी बात लिखी है कि वो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे आना शुरू हो। अब सलीब उठाना क्या है? क्या यह सलीब रखी है? हम भी जब प्रोग्राम होता तो एक लड़के ने उठाई होती ना, या कंधे पर रख के चल पड़े, तो क्या ये सलीब उठाना? ये सलीब उठाना, गले में पहन ले, ये सलीब उठाना है। मैंने ये रिंग पहनी है, इस पे सलीबें बनी है बहुत सारी, क्या ये सलीब उठाना है? नहीं। अपनी खुदी का इनकार, अपने आप को मार दे और उसके बाद अपनी सलीब उठा। और यहां पे हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी खुदी को कैसे मारा। उसने अपने आप को पस्त किया। वो तो आसमानों का मालिक था, वो तो दुनिया जहान का मालिक था, लेकिन उसने अपने आप को पस्त कर दिया, मार दिया। उसने खुदा के ताबेदारी दिखाई। उसने कहा बाप मैं तैयार हूं, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। खुदावन ने उसे कहा जमीन पे जाके तू सलीब पे चढ़ जा, तो उसने क्या कहा? मैं तैयार हूं। आज हमें भी जरूरत है कि अपनी खुदी का इनकार करें और अपनी सलीब उठाएं। खुदा यीशु मसीह ने जब सलीब उठाई तो हम देखते हैं कि उसके पीछे चलेंगे तो क्या होने वाला है। वो हलीमी से चलता रहा, वो फरोतनी से चलता रहा, वो गुर्बत में चलता रहा, वो खुदा तरस था, मोहब्बत से भरा हुआ था, फजल से भरा हुआ था, और हर तरह की खूबी उसमें शामिल थी। क्या आज हमारी जिंदगी में ये चीजें हैं? फिर हम कैसे सलीब उठा के उसके पीछे चल सकते हैं? अगर हमें तो कोई गलत बात कह दे, हमें कोई बुरा भला कह दे, कोई गाली निकाल दे, तो जब तक हम आगे से जवाब नहीं देते उतनी देर तक हम कहते सानू चैन नहीं। रात को कोई लड़ाई हो जाए ना, हमारे मोहल्ले में भी हो जाता है, आपके मोहल्लों में भी होता होगा, तो बीबियां की कर दिन रात सारी हांडी वांगू सड़दियां रहदियां, सीधे ने चढ़े तो मैं कर देना है, दिन तो निकलन दे, बस दिन निकलते हैं, बस दरवाजे खड़काने, निकलो बाहर। हम ऐसी सलीब उठा के चलते हैं। ये हमारी सलीब उठाना है। हम ये सलीब उठा के क्या करते हैं? चल रहे और बनते हैं खुदा के बड़े वफादार। थोड़े थोड़े आगे हो जाए, थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़े से आगे हो जाए, आगे आगे थोड़े, शाबाश शाबाश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज लोग आएंगे, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई थी, तो मैं यहाँ पे बैठ के कहा था मैं कि आज लोग नहीं आना। लेकिन जो लोग खुदा से प्यार करते हैं वो ना बारिश को देखते हैं। मुझे पता है यहाँ पे अगर बाल्टन वाले आए तो वो भी बारिश में ही आए। बारिश हो रही थी बाल्टन, निशान कॉलोनी में भी बारिश हो रही थी। मैं फोन कर रहा था, मुझे फोन आ रहे होते फलां जगह से भी। अभी ये फैला, ये कहां से आए आप? दरोगे वाले से। दरोगे वाले बारिश हो रही थी? नहीं हो रही थी। हो रही थी? हो रही थी। फिर चरण गांव से आए हैं, वो भी बारिश में आए हैं। फिर उसके बाद टाउनशिप से लोग जो आए हैं वो भी बारिश में आए होंगे, क्योंकि इन इलाकों में क्या हो रही? बारिश हो रही है।
लेकिन साढ़े महल्ले च बारिश को नहीं हुई, हमारे इलाके में बारिश नहीं हुई और हमारे लोग को नहीं है, घट है, क्योंकि बारिश बड़ी होगी ना, ताड़े नहीं हुई, साढ़े बहुत बारिश हुई। ये है हम सलीब उठाई है, हमने क्या है, ये सलीब उठाई हुई है, सलीब उठा और मेरे पीछे चल। खुदा यीशु मसीह चाहता है कि हम बगैर सोचे समझे अपनी जिंदगी उसकी ताबेदारी में दे दें, अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे चलना शुरू करें। और ये उस वक्त मुमकिन है जब आप दुनियादारी को छोड़ सकते। अगर दुनियादारी नहीं आप छोड़ सकते तो आप अपनी सलीब उठा के खुदा यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। अगर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी खुदी का इनकार करें और अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चलना शुरू करें। और जो बातें मैंने बताई ये अपनी जिंदगी में ले कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बताया ना कि हम तो लड़ाई हो जाए तो असी दिन चढ़दा इंतजार करने हैं, क्या फायदा, सारी रात पासे मोड़ते रहने, इधर मोड़ दिन चढ़े, बस किसी तरीके ना दिन चढ़ जाए, उन्होंने बस नहीं चलता, नहीं तो खुदा का दवा दिन चढ़ा असी लड़ना ही, असी तो लड़ाई करनी, खुदा तो इन्ना दिन लंबा रात लंबी क्यों करती है। ऐसे लोग हैं। और हम क्या हैं, इनकार, खुदा का इनकार करते हैं ऐसे लोग, लेकिन दावा करते हैं कि हमने उसकी सलीब उठाई हुई है। हम उसकी सलीब नहीं उठा सकते। सलीब उठाने की पहली जो रुकावट है वो है कुदरती आजमाइश। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो सबसे पहले हमें आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, हम पे आजमाइशें आती है। अक्सर जब लोग मेरे पास आते हैं दुआ करवाने, खासकर बदरू गिरफ्ता जो लोग होते हैं, तो मैं उनको पहले से आगाह करता हूं कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, आपकी जिंदगी में क्या क्या होगा। और मैं आपको पता, मैं कभी दावा नहीं करता जब तक खुदा मुझे आगाह ना करे। खुदा मुझे बताएगा तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मेरा तजर्बा बहुत है, तजर्बे बहुत है मेरे। मैंने 100 के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से बदरुएं निकाली, हजारों के हिसाब से। खुदा का शुक्र है छोटी सी जगह पे अब बैठे हैं, लेकिन शायद ही कोई बदरू ऐसी होवे जेड़ी मैनू ना जानती होवे। मजे की बात है कि नहीं, बदरूआ मैनू जानती है कि नहीं। पास्टर रियाज अक्सर जब मैं कहता हूं ना तो कहते तुम है फिर जादूगर ही थे ना, लोग फिर जादूगर भी तो इसीलिए कहते ना। मैं अक्सर बात करता हूं कि ये खुदा की खास बरकत है। सिखो यहूदी के बेटों ने जब बदरूएं निकालने की कोशिश की तो क्या कहा बदरू ने, जिसके अंदर बदरू थी, क्या कहा, याद है किसी को? बोले, अगर किसी को भी याद है तो बोल दे। अमाल की किताब में, हाँ जी बोले, कौन, किसी को पता नहीं है? लिखा है कि सिकवा यहूदी के बेटे बदरू निकाल रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस पलूस जिस खुदा की इबादत करता है, जिस यीशु की वो इबादत करता है, उसके नाम से तुम्हें कहते हैं निकल जा। तो बदरू ने कहा यीशु ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ ਤੇ ਪਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ। ਤੇ कपड़े फाड़ देते थे, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए थे। आज भी बदरू खुदा के खादमों को जानती हैं, जिनके पास ब्लेसिंग है, जिनका उनको पता है, जिनको खुदा ने बरकत दे रखी है, बदरूएं उनको जानती हैं। और ऐसे पास्टरों ने मैं समझता हूं कि अपनी सलीब उठाई हुई है, वो सलीब उठा के चलते हैं, खुदा के पीछे पीछे चलते हैं, वो दुनियादारी में नहीं लगते, वो अपने आप को क्या करते, खुदा के ताबिया करते हैं। पहली आजमाइश जो आती है वो आजमाइश क्या है, पहली जो रुकावट आती है, और उसके साथ इंसान अपनी जान की परवाह करता है, आरामदेह तकलीफ, आरामदेह जिंदगी ढूंढता है, आराम मिलना चाहिए। पिछले दिनों चलिए आपको बताता हूं, पिछले दिनों मुझे किसी ने नोट्स भेजा है, एक नई मिशन आ गई, मिशनें बड़ी आ गई। हमारी मिशन कौन सी, चले कौन सी मिशन है हमारी? हमारी कोई मिशन नहीं है, पक्की बात है, साड़ी कोई मिशन नहीं। साडा मिशन है खुदा यीशु मसीह दी मदद करना, सच्चाई ते रूह नाल, डर के नहीं, डर के आप काम नहीं करते। पास्टर ने आज तक तुम डर पड़े, जब मैं कहा डर ही चंगे हैं, हम नहीं डरते ना बदरुओं से ना आम लोगों से, हम नहीं डरते, हम सिर्फ डरते खुदा से। जो खुदा के कलाम में लिखा है वो हमने सच्चाई से प्यार करना है।
एक मिशन आ गई है नई, उनका फेथ है जमीन, नया आसमान नई जमीन। शायद पास्टर साहब को भी बताओ, क्या जी भाई साहब, आ गई ना 25,000 50,000 रुपया तनख्वाह दे दी पादरियां साढ़े ना रल जो। और उनका फेथ क्या है, वो उनका जो हेड है वो कहता है जी मैं यूहन्ना रसूल हूं और मैंने वो किताब खाई है जो बाइबल मुकद्दस में काश में जिक्र आता है कि ये किताब पकड़ और खा ले, ये तेरा मुंह तो कड़वा कर देगी लेकिन तेरे पेट को क्या करेगी, मीठा। वो कहता जी मैं ही हूं। क्या आज हम खुदा की तरीक से हट जाए, ऐसे लोगों के पीछे जाए? क्या 25,000 50,000 में हम बिक जाए? क्या हमें ऐसी मिशनों में जाने की जरूरत है? नहीं है। हमें पैसे के पीछे नहीं जाना, क्योंकि हमने अपनी खुदी का इनकार करना है। और खुदी का इनकार उसी वक्त करेंगे जब ऐसे लोगों को आप मुंह पे जवाब देंगे मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार है नहीं हूं। ये बिद्दत है बहुत बड़ी। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आखिरी जमाना में ऐसे लोग आएंगे जो दो बड़े बड़े दावे करेंगे। ये दावे शुरू हो गए, वो मिशन आ चुकी है और मेरे पास भी उनकी रिक्वेस्ट आई थी लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। बाद में मुझे पता चला कि इनका फेथ ही ये है। यहां पे आप देखते हैं कि सबसे दूसरी जो इंसान आराम से जिंदगी लभदा, वो कहता चलो डॉलर ते आउण नहीं रहा ना, खैर है केड़ी जरूरत है, एडी गर्मी च बादल च बैठे हैं ना करो बादल, खैर है डॉलर ते आउण नहीं रहा ना। लेकिन खुदा ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। और तीसरा जो होता है वो अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। ये पहली रुकावट है जो हमें अपनी सलीब उठाने से रोक देती है। फिर हम सलीब नहीं उठा सकते। जब हम इन चीजों पर गौर करते हैं, अपना नुकसान नहीं होने देंगे, हम आजमाइश में नहीं पड़ेंगे, हम आरामदेह जिंदगी ढूंढेंगे, तो कैसे हम खुदा के साथ चल सकते? खुदा यसुस ने परवानी की थी, उसने सलीब उठाई और चलना शुरू हुआ और कोहे कलवरी का रास्ता था और कैसा दुश्वार रास्ता था। उसने अपनी जिंदगी में कहीं हमें यह नहीं नजर आता कि वो आराम से कहीं सोया हो। कश्ती में एक बार जिक्र आया, सो गया, तूफान आ गया, शिकंदा ने ठाता उठ जा जल्दी कर असी मर चले। वहां में भी उसको सुकून नहीं लेने दिया। और दूसरी जो रुकावट है, दौलतमंद बनने की ख्वाहिश होती है हमारे दिल में। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमें हमारे जिंदगियों में। और जो लोग खुद गर्ज मकसद के लिए जिंदगी से चिपटे रहते, खुद गर्ज जिंदगी से, वो अपनी जिंदगी का मकसद कभी भी हासिल नहीं कर सकते। वो दुनिया में तो रुपया पैसा कमा सकते हैं, दुनिया को हासिल कर सकते हैं, बहुत सारा रुपया पैसा कमा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जब मरेंगे तो क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं, खाली हाथ लेके आसमान पे जाएंगे। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम खाली हाथ ना लेके, क्या लेके जा सकते हैं? क्या ख्याल है आपका जी? अमाल लेके हम ऊपर जा सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी अच्छी है तो ये हमारे साथ जा सकते हैं माल हमारे, बाकी रुपया पैसा नहीं असी लेके जा। जितना मर्जी कमा लो, जितनी मर्जी बेईमानियां ना कमा लो, रात देने के कर दो, लेकिन ये पैसा आपके साथ जाने वाला नहीं है। अपनी खुदी का इनकार कर और अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे आ। अपने नुकसान को छोड़ दे, ये ना सोच मेरा क्या नुकसान होने वाला है। अगर हम खिदमत करते हैं तो कभी हमने इन चीजों पर गौर नहीं किया। हम सोचते हैं कि हम खुदा के पीछे चलने वाले हैं। अपने जरा 24 आयत से और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, यानी मेहनत करे, दिन रात एक कर देना है, मेहनत कर रुपया पैसा कमाना है, लेकिन अपनी जान का क्या कर देना है? नुकसान कर देना। जब बंदा जवान होता है ना, जो हड्ड पैर चलते होंगे, हड्ड पैर ही कह सकते ना, हड्ड पैर चलते होंगे ने, उदों असी बड़ा दाएं बाएं भजने, उदों नहीं खुदा याद होता सन। थोड़ा जिहा जो खुदा तुनका लाता, बुढ़ापे वेले जाने ना, हाथ पैर चलते नहीं, तो फिर हर बंदा क्या करता है? खुदा को याद, और चलो जी हुण की करना, ड्यूटी भी फारग होगी, रिटायर हो गया, खुदा दे नाल ही चलांगे। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा?
جب گوڈے گٹیاں تو رہ گئے تو خدا والے طور پہ خدا ایسی سلیب نہیں چاہتا کہ ہم ایسی سلیب اٹھا کے اس کے پیچھے چلے. ہمیں اپنی زندگی میں نوجوانی کی حالت میں اپنی خودی کو مارنے کی ضرورت ہے, اور جب ہم مار لیں گے تو پھر ہم اس کی سلیب اٹھا کے اس کے پیچھے چل سکتے ہیں. آدمی دولت کما لے, سارا کچھ حاصل کر لے, لیکن اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ روپیہ پیسہ لے کے نہیں جا سکتا, وہ خالی ہاتھ اوپر جائے گا. ہاں جی پڑھے آگے. یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کی جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. اب خداوند کے کلام میں لکھا ہے ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں آئے گا. خداوند یسوع مسیح جاہو جلال کا بادشاہ ہے, اور جب اس کی دوسری آمد ہونے والی ہے, جب وہ اپنی 1000 سالہ بادشاہی کے لیے آئے گا تو وہ پورے جاہو جلال کے ساتھ آئے گا. اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھے, وہ جلال پہ وہ تاج پہنے گا جو جلالی تاج ہے, وہ پہن کے وہ آئے گا, اور ہم سب اگر زندہ ہوں گے تو ہم بھی اٹھ کر اس کا بادلوں میں استقبال کریں گے. لکھا وہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا, اور جب وہ آئے گا اور اگر ہم نے اپنی سلیب نہیں اٹھائی, اپنی خودی کا انکار نہیں کیا, تو کس منہ سے ہم اس کے سامنے جا سکتے؟ کیا مال لے کے ہم سامنے جائیں گے اس کے؟ ہم تو خالی ہاتھ ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے تو ساری زندگی روپیہ پیسہ اکٹھا کرنے میں لگا دی ہے, ہمارے پاس تو روپیہ پیسہ جمع ہو گیا ہے, اور ہمارے پاس باقی امال کو نہیں ہے, ہم کچھ بھی نہیں لے سکے. لیکن ابدیت میں جانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. روپیہ پیسہ ہمیں کبھی, پچھلے دن میں کسی نے بتایا کہ جی کوئی ہمارے گھر خادم آیا تو انہوں نے کہا جی تہاڈے گھر میں عبادت کرا, تسی ایویں عبادت مانگ کر لی, تھوڑے دنوں تک کرتے میں تہانوں روح القدس دے دینا سی. کیسے بھائی صاحب روح القدس کو دے سکتا پاسٹر؟ یہ چھوٹی باتیں ہیں, یہ چھوٹی من گڑت باتیں ہیں کہ میں کہوں کہ میں ہوں تہاڈے دعا کراں گا تہانوں روح القدس کیسے مل جائے گا؟ میں بھاویں ویلا ہواں تو میں تہانوں کی دینا ہے. ہم ایسے دعوے کرتے ہیں. کہتی جی ایسے انہوں نے کہا کہ جی آپ دوبارہ سے ہم ناراض ہو گئے آپ سے, ہماری دعوت کرو, پھر ہم آپ کے گھر واپس آئیں گے اور پھر دعا کریں گے تو آپ کو روح القدس مل جائے گا. تو بدروہاں دی بھری ہے بہن بیچاری, 9 سال سے اس کے اندر بدروہیں تھی. اب خدا کا شکر جا کے بحال ہوئی. اس نے کہا جی اب میں بحال ہوئی ہوں, تو میں کہوں بلا کے دعا کروا کے پھر روح القدس ملا انہوں کو. ایسے لوگ ہیں, خودی کا انکار نہیں کرنا بلکہ بڑے بڑے دعوے ہیں. کوئی پاسٹر آپ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو روح القدس نہیں دے سکتا. روح القدس آپ کو اپنے ایمان سے ملنا ہے, آپ کی محنت سے ملنا ہے. آپ دعا کریں گے تو پھر خدا آپ کو روح القدس دے گا, ورنہ کچھ نہیں ملنے والا. اگر ہم کے پاسٹروں کے وسیلہ سے ہم آسمان پہ چلے جائیں گے تو نہیں جا سکتے. پاسٹروں کا کام ہے کلام سنانا, لیکن عمل کرنا آپ کا کام ہے. ہم دیکھتے ہیں پڑھیں آگے. اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلے کیا جی اس کے کاموں کیڑا کام؟ میں نوکری کر رہا ہوں تو میں رشوت کھا رہی ہوں بڑی, اے کمانا یہ تو اجر مل نہیں ہے, اس کا اجر ملنے والا یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں, اس کا اجر نہیں ملنا. اس کے ہر کسی کے کام کے مطابق کیا ہے, اس کو کیا ملنے والا ہے؟ بدلہ. بدلہ لے گا خدا, یہ ذکر رکھیں. اس لیے آج ضرورت ہے کہ جب ہم زندہ ہیں تو ہم ان چیزوں سے بھاگے, اپنی خودی کا انکار کریں اور اپنے آپ کو خدا کے تابعداری کریں. خدا میں تیرے ساتھ چلنے والے تیار ہوں, خدا میں اپنی زندگی کو ختم کرتا ہوں, خدا تم مجھے چلا, اور خدا آپ کو برتوں سے بھر دے گا. کبھی خدا بھوکا نہیں سونے دے گا. لیکن جب آپ اپنے خدا کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر خدا آپ کو کچھ بھی دینے والا نہیں ہے. جلدی کریں گے, ٹائم نکل گیا میرا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے, موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. موت کا مزہ ہرگز. اب یہ واقعہ بھی ہو گیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں, نہیں زندہ. ابھی پہلے ایک اور دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کیسے آنے والا ہے, کیسے رسولوں نے. دوسرا پطرس پہلی باب پہلا باب اور اس کی 16 آیت کو پڑھ دیں ذرا جلدی سے. ہاں جی 16 آیت 277 نمبر پیج. کیونکہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں کیا.
आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दगाबाजी से आपको ठगते हैं, दगाबाजी का कलाम सुनाते हैं। कलाम सुनाते जरूर है लेकिन दगाबाजी से, डंडियां मार मार के। हमारा काम डंडी मारना नहीं है, हम डंडी मार के कलाम नहीं सुनाते। खुदा का कलाम जो बताता है, जो बयान करता है, वो हम सुनाते। यहाँ पे हम यही पढ़े, दोबारा से पढ़े क्या लिखा है। क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद की वाकफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। खुद उसकी अजमत को देखा था। वो कहता मैंने देखा था, देख के मैंने ये सारा कुछ तुम्हें बताया, इसलिए तुम्हें कलाम सुनाया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये सारा कुछ देखा था। आज हम कैसे यकीन कर लें कि यूहन्ना रसूल आ गया, किताब भी उन्हें खाती है, तो हम उस मिशन में चले जाएंगे पैसों की खातर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके पीछे जा रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि अपनी खुदी का इनकार करें, अपने आप को मार दें और खुदा के ताबिया कर दें और सलीब उठाएं और उसके पीछे चलना शुरू करें। जो कुछ उसने दुख तकलीफ चाहिए थी वो सह के तो देखें। जब उसको सहेंगे, कितनी गर्मी है, बैठे हैं ना, क्या ख्याल है। मैंने पंखा भी बंद कर दिया, इसलिए मैं बात करता हूँ ये पंखा जब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक तो बाइबल में मुझे मुश्किल होती है, दूसरा मैं इस बात से भी करता हूँ कि आप ये ना कहें आप पादरी ने आप पंखा लाया थे ऐसा गर्मी छुपाया। एसी आप चलाते हैं लेकिन जब लोग गैदरिंग हो जाती फिर उसकी कूलिंग नहीं होती। हम दगाबाजी से कुछ नहीं करते। पढ़े आगे जी, वापस आए, एक और हवाला पढ़ दे जरा। यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14 आयत पढ़ते, आखिरी बात इसको खत्म करेंगे आप। पहला बाब उसकी 14 आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे दरमियान रहा। वो हमारे दरमियान रहा जी। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यही जलाल हम दोबारा देखने वाले हैं। लेकिन वो लोग देखेंगे जो अपनी खुदी का इनकार करेंगे और अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चलना शुरू करेंगे। वो उसका जलाल दे सकते हैं, सारे नहीं देख सकते। आए आखिरी एक पढ़ लें ताकि आपको ये बात चले कि खुदा यीशु मसीह ने लास्ट में क्या कहा। मत्ती की इंजील में वापस आए, 17 बाब को पढ़े जो भी हमने पढ़ा। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बहुत ऐसे भी होंगे जो मेरे आने तक क्या क़यामत तक मजा ना देखने मंजर ना देखने तक क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। पढ़ लें जरा इसको भी। हाँ जी पहले ऐसे 6 दिन बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। उनके सामने उसकी सूरत बदल गई। ये है क़यामत का मंजर। ये खुदा ने यहाँ पे दिखा दिया था। ये नहीं आप कह सकते कि वो जिंदा है। उन्हें ना समझ लीजिए कि वो यूहन्ना वाकई वही होएगा, जिंदा ही होना है, क्योंकि खुदा ने यीशु ने कहा था। नहीं, यीशु मसीह ने जो बात कही थी ये पूरी हो चुकी है। पढ़ दे जरा इसको। और उसका चेहरा सूरज की माने चमका। उसका चेहरा सूरज की माने चमका। जब खुदा यीशु मसीह बादलों में आएगा तो उसका चेहरा सूरज की मानत होगा। वो जाहो जलाल के साथ वापस आने वाला है और ये मंजर हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। पढ़ दे आगे। और उसकी पोशाक नूर की मानत सफेद। उसकी पोशाक नूर की मानत सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ खड़े थे, बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। हाँ जी। पतरस ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारा यहाँ रहना अच्छा, क्योंकि उन्होंने क़यामत का मंजर देख लिया। उन्होंने क्या खुदावंद यीशु मसीह जाहो जलाल के साथ है खड़ा है और अंबिया किराम भी वहां पे हैं। ये है क़यामत का मंजर जो उनको दिखा दिया गया था। उसके बाद हम नहीं कह सकते कि वो जिंदा है, वो आसमान पे जा चुके हैं, क्योंकि ये खुदा के कलाम की बातें हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या हमने अपनी खुदी का इनकार किया है? क्या हम अपनी सलीब उठा के उसके पीछे चल रहे? अगर नहीं चल रहे तो आज ही अपनी सलीब उठाएं और उसके पीछे चलना शुरू करें, ताकि खुदा आपको उन मकानों में जगह दे जो उसने हमारे लिए तैयार कर रखी है। आए खुदा इस्लाम के सिरा से हम सबको बरकत दे।